اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یا وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اوکے جزاک اللہ خیر. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے جو پڑھا تھا اس سے پتہ ہے ہم آیا 11 پڑھ رہے تھے، یاد ہے، سورہ نساء کی. اور اس میں ہم نے اس کے اندر جو وصیت یوصی بہا او دین آیا تھا اس کے بارے میں ہم نے دین کے بارے میں پڑھا. دین مینس لون. ہم نے وہ سارا پڑھا تھا کہ کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی لون ہے یعنی کوئی قرضہ ہے کسی کے اوپر، تو اس کو جو میت کے اوپر کیا کیا قرضے ہوتے ہیں اور کن کو کس آرڈر میں امپلیمنٹ کرنا ہے. سب سے پہلے کون سا قرضہ چکانا ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ 4 قسم کے ہیں جو ڈیٹ کی جو چیزیں ہیں. ایک تو اس کا اپنا فیونرل بیریل ایکسپینس تھا. دوسرا پھر ہم نے دیکھا اس کے جو پرسنل ڈیٹس ہیں یا لونس ہیں. تیسرا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہے ایگزیکیوشن آف دا ول. لیکن ول آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ نمبر 3 ہے. اور نمبر 4 جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف دا ریمائنڈر، جتنا بھی اس کا انہیریٹنس کے حصے ہیں اکارڈنگ ٹو دا شریعہ لا وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے وہ 2 کر لی. اب ہم تیسرے پہ ہیں which means کہ we will learn about the execution of the will of the deceased. یعنی کہ جو میت ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اگر کوئی وصیت کی تھی یا وصیت کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، پورا وصیت کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو ہم سب کو معلوم ہے، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک ریلیجن نہیں، ایک مذہب نہیں ہے. یعنی ایک مین میڈ مذہب ہوتا ہے جس میں یہ کرو. اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. اٹ از اے کمپلیٹ وے آف لائف. ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اس میں، کھانا پینا ہر چیز اس میں آتا ہے. کہتے ہیں نا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اٹ از ایکچولی اے گائیڈنس فرام اللہ جو کہ ہمیں لائف میں گائیڈ کرتی ہے فرام ہیئر انٹو دا نیکسٹ لائف. نیکسٹ لائف اس لیے کیوں کہہ رہی ہوں کہ ابھی وصیت کی باری آ رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلیئر گائیڈنس دی ہے. بہت اچھی طرح ہمیں بتایا ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ آنی ہے سب کو. کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن کس طرح ہم اس ڈیتھ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور ڈیتھ کے بعد کے لیے بھی تیار کریں. کیونکہ جو ہم مرنا تو ہے ہی، ہم نے مرنا ہے. ہم دوسروں کے لیے جو ہمارے پیچھے رہ جائیں گے، جو ہمارے ورثاء ہیں، جو وارث ہیں، ان کے لیے کیوں نہ چیزوں کو آسان کیا جائے. ہم اپنی زندگی مزے سے گزار رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے بھی کچھ آسانی کر دیں. وہ آسانی کے لیے جو ہے کہ ون آف دوز تھنگز اس میں یہ کہ وصیت ہم کر کے جائیں جس طرح سے شریعہ نے ہم کو بتایا. حرام وصیت نہیں، صحیح وصیت کر کے ہم مریں، تاکہ ہمیں پتہ تو نہیں موت کب آئے گی، لیکن ہم اپنی وصیت کر لیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو وصیت کیا ہوتی ہے، ول کیا ہوتا ہے، یا اس کو بیکویت بھی کہتے ہیں. ہم اس کو وصیت کہیں گے، عربک میں وصیہ کہتے ہیں اور ہم اس کو وصیت کہیں گے. اس میں کیا ہوتے ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کچھ اپنے ایک زندہ سمجھے کہ میں وصیت کر رہی ہوں تو میں ایک زندہ انسان ہوں اور لیونگ پرسن ہے، لیکن میں یہ وصیت کر کے مروں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ میرے پیسوں سے، میری جائیداد سے، میرے سب چیزوں سے کیا ہونا ہے، یا میری کو خواہشات ہیں اس پہ کیا ہونا ہے. تو یوزولی تو وہ ڈسٹریبیوشن آف دا پراپرٹی ہوتی ہے. یعنی اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے متعلق ہدایات ہوتی ہیں، اس کے متعلق کچھ تاکید ہوتی ہے، کچھ تنبیہ ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں رائٹس کی کہ میں نے کس کو کیا سونپنا ہے کہ وہ کیا کرے. یہ سب کچھ وصیت میں آ جاتا ہے. اور ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ وصیت کمز آفٹر دا ڈیتھ. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیں معلوم ہے. اب ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور سورہ اسی نساء میں ابھی ہماری جو نیکسٹ آیت آئے گی جو آج نہیں ہے، جو آیا نمبر 12 ہوگی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ we were doing آیا نمبر 11. ٹھیک ہے نا. ابھی آیا نمبر 12 جو آئے گی اس کے اندر بھی یہی ورڈز آئیں گے، من بعد وصیت یوصی. اس میں یوصی کے بعد یوصی بہا او دین، اور اس کے ساتھ ایک ایڈ ہوا ہے غیر مدار. غیر مدار کا مطلب ہے، غیر کا مطلب نو، اور مدار کا مطلب ہے ہارم، جس میں کوئی ہارم نہیں ہو. یعنی ایسی وصیت ہو جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہر بندے کو وصیت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، it is the duty of a Muslim who has anything to bequest. اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، not to let 2 nights pass without writing a will about it. ہمارے تو دن بھی گزر جاتے ہیں، ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، مہینے بھی گزر جاتے ہیں، اور سال بھی گزر جاتے ہیں، اور ہم وصیت لکھ نہیں پاتے ہیں.
تو یہ کتنی بری بات ہے. اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے لکھی کہ نہیں لکھی, لیکن وصیت لکھ دیں تو بہت بہتر ہے, ریکمینڈیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آلسو سیڈ کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ بہت سارے 7, ٹھیک ہے میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ ایک آدمی جو ایک مین میں ڈو گڈ ڈیڈس فار 70 years, 70 سال تک وہ اچھے اچھے ڈیڈس کرتا رہے, لیکن وہ اگر if he acts unjustly, اگر فیئرلی نہیں کرے گا, جب وہ اپنا ول بنائے گا, جب اپنا لاسٹ ٹیسٹمنٹ بنائے گا, اس میں جو ہے اس کی جو ڈیڈز ہیں, اس کی جو وکڈنس آف ہز ڈیڈز جو ہیں وہ اس سے سیل ہو جائے گا. وہ جو اب دیکھیں 70 سال تک نیکی کرنا, لیکن مرنے سے پہلے ول بنانا اور وہ ول غلط طریقے سے بنا دینا, وہ اس کا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہوگا, اس میں جو اس کی ایول ہے, جو اس کا شر ہے, اس سے وہ سیل ہو جائے گا وہ ٹیسٹمنٹ, اور کیا ہوگا, اینڈ ہی ول انٹر فائر. بہت ہی خطرناک حدیث ہے, بہت ہی خوفناک حدیث ہے. اور پھر ایک اور ہے اس سے جو ہمیں انکریج کرتا ہے, اینڈ اف اے مین ایکٹس وکڈلی فار 70 years but is just in his last will and testament, the goodness of his deed will be sealed upon him and he will enter the garden. یہ بھی کتنے مزے کی بات ہے. اگر ہم اپنا ول اچھا بنا لیں, صحیح طریقے سے بنا لیں, فیئرنس سے بنا لیں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, اس سے کیا ہوگا, انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے. اسی لیے اس کو جو ہماری ایک اوبلیگیشن ہے سمجھ لیں, اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون ہماری وصیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کس کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے غریب پور جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی ہیلپ کر سکیں, جن کا ہمارے وراثت میں شیئر نہیں ہوگا. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا, اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شیئر جو ہوتا ہے, جو ارد گرد غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہیں ہے, اگر وہ بیٹھے تو ان کو بھی کچھ دے دو. اگر وصیت میں کچھ لکھ دیا جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, میرا فلاں دوست ہے, فلاں ہے, اس کے لیے میں وصیت کر رہی ہوں کہ اس کو اتنا کچھ دے دینا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا, اس کو ہیلپ ملے گی جبکہ اس کا شیئر نہیں ہوگا. یو کین میک اٹ پارٹ آف دا وصیت. دیر آر ادر بینیفٹس ایز ویل, جس کو میں بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ وصیت ہے, اٹ ول گیو یو پیس آف مائنڈ, آپ کو سکون, چین, آرام ہو جائے گا کہ جب میں فوت ہوں گی تو میرے بعد جو ہے یہ تمام جو تقسیم ہوگا وہ میری وصیت کے مطابق کچھ چیزیں ہوں گی. ایک اور چیز ہے کہ جب اگر کوئی غیر ضروری ڈسپیوٹس ہونے والے ہوں, جھگڑے ہونے والے ہوں, جو کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے, وہ میرا حصہ ہے, میں نے یہ کہا تھا, مجھے آپ نے, وہ سب اگر وصیت ہوگی تو وہ تمام ریزالو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا ہے کہ نہیں ہے. جو ایک تو حصے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے, اس کے علاوہ یہ وصیت ہے. تو پھر وصیت جو ہے اس سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس چیریٹیز کو ابھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, جن مسجدوں کو, جن چیریٹیز کو ابھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, مدرسوں کو, وہ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد وہ نگلیکٹ نہ ہو جائے. اگر ہم لکھ دیں گے اور اپنے بچوں کو یہ کہہ کے جائیں گے کہ دیکھو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر ہو سکے تو تم اس کو سپورٹ کرنا, اگر اتنے پیسے ہوں گے تو وہ ان کو کنٹینیو کریں گے سپورٹ کرنے کے لیے. پھر اس طرح ہم کوئی صدقہ جاریہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو ہو. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے تمام ڈیڈز جو ہیں, تمام اعمال جو ہیں وہ اینڈ ہو جاتے ہیں, مرنے کے ساتھ اینڈ ہو جاتے ہیں, ایکسیپٹ فار 3 ایسی چیزیں ہیں. ایک نمبر 1 کہ جو آن گوئنگ چیریٹی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ, آپ نے کوئی چیز ایسی کر دی جس سے کسی کو آپ کی موت کے بعد فائدہ پہنچ رہا ہے. نمبر 2 بینیفیشل نالج, وہ نالج, علم المنتفع اس کو کہتے ہیں, وہ نالج جو کسی کو فائدہ دے رہی ہے. اور نمبر 3 رائچیس چائلڈ یا پائس چائلڈ, ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت مطلب ضروری ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ, ہمارے ڈیڈز تو اینڈ ہو جائیں گے لیکن یہ آن گوئنگ چیزیں یہ رہیں گی. تو اس لیے اگر آپ ول بنانا چاہتے ہیں تو ہر ملک کا اپنا اپنا ایک دستور ہوتا ہے. ول بنائیں اور اینڈ ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس بھی جو ہے وہ بھی ہر ملک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر ملک کے رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں. تو اگر ہم ول کے بغیر مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کنٹری کی لا کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا جہاں ہم رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کنٹری, ابھی میں یہاں رہ رہی ہوں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, تو ہم اگر ول نہیں بنائیں گے تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح سے اس ہمارے انہیریٹنس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گی which may or may not be the Islamic way depending on ہم کہاں رہ رہے ہیں.
اگر کہاں رہ رہے ہیں مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا صحیح ہو. اب الحمدللہ انکریزنگ نمبر آف گورنمنٹس جو ہیں دنیا میں وہ اپنے سٹیزنس کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ خود اپنے لیے کوئی ول بنا لیں اپنی پریفرنسز اور اپنی بلیفز کے مطابق. یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنی اسلامک لاز آف انہیریٹنس کے مطابق یا اسلامک وصیت کے مطابق آپ وصیت کر لیں. تو الحمدللہ ان موسٹ کیسز اب کیا ہو گیا کہ ہم اسلامک ول بنا سکتے ہیں. یہاں رہ کے بھی الحمدللہ بہت اچھے اچھے لائرز ہیں جو ہماری اسلامک ول بنا دیتے ہیں. اب اگر آپ کو لائر نہیں چاہیے تو آن لائن بھی فارمز ہیں جس سے ہم اپنی وصیت اپنا ول بنا سکتے ہیں, اور یہ لیگلی ایکسیپٹیبل ہے ان آلموسٹ اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اب دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں کیا ہے لا, تھوڑا سا دیکھنے کے لیے. سپوز ہمیں اگزامپل لینے کے لیے ایک میرڈ کپل ہے, اب وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر اس کا کوئی ول نہیں ہے اور کوئی گارڈین اپوائنٹ نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا, کورٹ کے پاس جو یہ بہت اوور ویلمنگ اس کے پاس سے ہوگا کہ وہ ان بچوں کو کہاں ڈالیں. اگر ان بچوں کو, اور یہ جو ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈین شپ جو ہے ان بچوں کی کسی نان مسلم کو دے دیا جائے یا کسی نان پریکٹسنگ مسلم کو دے دیا جائے گا کہ بھائی چلو یہ رشتہ دار ہے اس کو دے دے, تو کیا ہوگا کہ ان بچوں کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. ہم نے اپنے بچوں کو دنیا میں بھی ڈینجر میں ڈال دیا, خطرے میں ڈال دیا, اور آخرت میں بھی ان کی آخرت بھی گئی, کیونکہ وہ کسی ایسے انسان کے گھر پڑھیں گے جہاں پر ان کو اسلام نہیں سکھایا جائے گا یا پریکٹس نہیں کرایا جائے گا. تو ایک وصیت جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کو بھی ہیلپ کرتی ہے کہ اس امپورٹنٹ ڈیسیژنز کو وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرے, اپنے بچوں کے لیے گارڈین شپ بھی کر سکے. گارڈین شپ بھی وصیت میں آ جاتی ہے. تو آفٹر دیٹ ڈیتھ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے گارڈین بنے. کچھ رولز ہیں اسلامکلی وصیت بنانے کے. ایک وصیت جب ہم بناتے ہیں کسی ویلتھ کے بارے میں سمجھے بنا رہے ہیں, اپنے ایسٹس کے بارے میں بنا رہے ہیں, جتنا ہمارا مال ہے اس کے بارے میں بنا رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1/3 آف دی انٹائر ویلتھ. ہم اپنے پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. ابھی سے آپ اس کو لکھ لیں, سنبھال لیں, 1/3 آف دی انٹائر ویلتھ ہماری جو ہے, اور اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے. اور اس کی جو لمٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اور بتایا, اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرتے ہیں سورہ نجم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنے دل سے نہیں دیتے ہیں, وہ میرے کہنے پہ دیتے ہیں. جب ان کو وحی آتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں, جو اپنی پسند کی چوائس وائس چیزیں کھانا پینا اس میں نہیں, جو احکامات ہیں. اب یہ ایک حکم ہے, ایک احکامات میں سے ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ پراپرٹی ہے, کیا میں اسے پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دوں, پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاف آف اٹ, کیا میں آدھا دے دوں؟ انہوں نے کہا نو. تو انہوں نے کہا 1/3 آف اٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1/3 ٹھیک ہے کر سکتے ہو, although 1/3 is also too much. دیکھیں مطلب 1/3 سے کم کر سکتے آپ, 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیکاز یہ بہتر ہے کہ آپ کے جو وارث ہیں, آپ کے جو انہیریٹرز ہیں, جن کو خود بخود شیئر ملے گا, ان کے لیے آپ اتنے پیسے چھوڑیں کہ وہ لوگ اس قابل ہوں کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں انسٹیڈ آف بیگنگ فرام ادرس. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. جو حدیث بخاری میں آپ کو پتہ ہے موسٹ اوتھینٹک ہے, جو مسلم ہے وہ بھی موسٹ اوتھینٹک ہے, اور بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ, اس کا مطلب کہ the highest level of authenticity ہے. تو اسکالرز یونانیمسلی اگریڈ ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ایئر ہے, کوئی اس کا وارث ہے, کوئی اس کا انہیریٹر ہے, تو اس کے لیے اس کو آپ ایک منٹ, if a person has any heir, his wasiyat should not be executed regarding more than 1/3. ہاں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایئر ہے, کوئی بھی وارث ہے, مطلب آپ کے مرتے وقت کوئی بھی ہے, تو پھر اس وصیت کو اگر 1/3 سے آپ نے زیادہ کر دی تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے, اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا ہے. آپ 1/3 تک کر سکتے ہیں, انلیس ایک ایکسیپشن ہے, اگر تمام ایئرز موجود ہیں,
किसी के बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं और बीवी भी है या हस्बैंड भी है, सब कुछ, तो वो सबको बिठा के उनसे अग्री करा ले कि मैं ये वसीयत करना चाह रही हूँ। उनके ऊपर है वो अग्री करें या नहीं करें। अगर वो अग्री कर लेते हैं तो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, ओनली कंडीशन जिसके तहत आपने किसी को छोड़ा नहीं है, तमाम आपके वरसा अग्री कर गए, तो फिर आप 1/3 से ज्यादा भी बना सकते हैं। दैट इज अ कंडीशन। जनरली स्पीकिंग 1/3 के अंदर होना चाहिए। अगर किसी का कोई भी एयर नहीं है, कोई भी वारिस नहीं है, अगर कोई मरता है ना बीवी छोड़ के, ना शौहर छोड़ के, ना माँ बाप छोड़ के, ना बच्चे छोड़ के, तो फिर क्या करना है, वो अपनी वसीयत कर सकता है कि मेरी तमाम की तमाम वेल्थ जो है फलां जगह पे दे दो, या फलां को दे दो, या मदरसे में दे दो, या किसी भी चैरिटेबल उसमें दे दो। ठीक है। अगर सिर्फ अगर एक ही एयर है जो कि स्पाउस है, मियाँ का बीवी या बीवी का मियाँ, जो कि उसका लीगल शेयर ले रहा है उसका, तो फिर उसका हिस्सा मिलने के बाद वो अपना विल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मियाँ बीवी अगर हैं दोनों तो एयर तो है ना। तो वसीयत जो है वो उन लोगों के लिए नहीं बनाई जा सकती जो वारिस है। अब जिसका नाम ऑलरेडी फिक्स है, जिसका अल्लाह ताला ने शेयर बना दिए हैं, उसके लिए विल आप क्यों लिखेंगे जबकि उसका शेयर अल्लाह ने बना दिया। बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का। अब हम आया 12 में पढ़ेंगे बीवी का और हस्बैंड का। जब हम ये सब पढ़ेंगे तो आप देखें जब क्लियरली डिफाइंड है शरिया में, तो उनके लिए विल नहीं बनाना है। और उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने अपॉइंट किया है हर एक के लिए जिसका जो हक है, जो उसको ड्यू है, जो उसके लिए अब उसको मिलना जरूरी है, और वो उसका वारिस है। तो इसीलिए वारिस के लिए आप कोई वसीयत ना करें। ठीक है ना। ये अबू दाऊद में है, सुनन अबी दाऊद में। लेकिन अगर वसीयत कोई वो छोड़ के मरता है किसी एयर के लिए, किसी वारिस के लिए, और बाकी लोग अगर अप्रूव नहीं करते हैं, वसीयत छोड़ दी, मैंने कह दिया कि भाई मेरी एक बेटी को या मेरे एक बेटे को सब कुछ मिल जाए, या ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, जो भी है, और मैं इस तरह मर गई, अगर दूसरे वारिस जो हैं वो अगर नहीं मानते, दे डू नॉट अप्रूव, तो वो वैलिड नहीं होगा। और इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, चाहे आप किसी भी स्कॉलर के पास जाएं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में जाएं। ठीक है ना, तमाम स्कॉलर्स इसे, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अच्छा, अगर तमाम एडल्ट्स जो हैं अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो वसीयत है इसमें समझे कि मेरा है, कि मेरी माँ ने मुझे, मेरे बच्चे कहते हैं कि और मेरा शौहर और सब अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसने जो किया हम इससे राजी हैं, मेरे मरने के बाद अगर वो कह देते हैं कि राजी हैं, या मरने से पहले भी कह देते हैं मैं वसीयत बना रही हूँ, कहते हैं हम राजी हैं, तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्कॉलर्स जो हैं, सब नहीं कहते हैं, फिर भी मोस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यही मेरे वरसा हैं। अगर तमाम वरसा अग्री करते हैं तो उसमें फिर क्या है ना। लेकिन अगर ये मैंने कहा एडल्ट्स, लेकिन अगर उसमें कोई माइनर एयर्स हैं, कोई ऐसे जो अभी तक जवान नहीं हुए हैं, तो फिर, या अब मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता है लेकिन और किसी पे अप्लाई होता होगा, कि जो जिसके अभी माइनर एयर्स हैं, तो उनके लिए उनका शेयर में से नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना, उसका जो है एक्सेस ऑफ 1/3 नहीं किया जा सकता। 1/3 तो फिर भी कर सकते हैं, ये हम बात करें 1/3 से ज्यादा करने का। 1/3 तो आपको हक है, आप कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, शायद मैं क्लियर नहीं थी, लेकिन 1/3 से ज्यादा करने के लिए यू नीड द अप्रूवल ऑफ ऑल द एयर्स। ठीक है ना, ऑल द एडल्ट एयर्स करें, और उसमें भी अगर वो माइनर्स हैं एयर्स में, वारिसों में अगर माइनर्स भी हैं, तो फिर उसको 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जो अदर देन द लीगल एयर्स, मतलब आपके जो वारिस हैं, उसके अलावा आप वसीयत, अभी मैंने आपको कहा किसी को भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसी यतीम खाने को, किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को, किसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको भी आप देना चाहें। लेकिन ये मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि देयर इज अ क्लॉज विद इट, इसके साथ भी एक शिक है कि अगर कोई नॉन शरिया कंप्लाइंट कोई ऐसी एक्टिविटी है, या कोई ऐसा फंड है, किसी और चीज का फंड है जो इस्लामिक नहीं है, बस समझ ले जो नॉन इस्लामिक है, ऐसा कोई फंड है, कोई हराम फंड है, उसमें नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें आप नहीं वसीयत नहीं कर सकते। इसी तरह एक वसीयत एक फीटस के लिए भी बन सकती है बिफोर इट्स बर्थ, जब पता चल गया कि कोई प्रेग्नेंट है। अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, और इसके जितने बच्चे होंगे उसके लिए करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए, फीटस आ जाए, सो इट इज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, वो पैदा नहीं हुआ है बच्चा, लेकिन पता है कि प्रेग्नेंट है। ये भी हो सकता है कि वो मिसकैरेज हो जाए, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए आप वसीयत लिख सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, इसका जब बच्चा होगा तो उसके लिए वसीयत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझिए आपके बच्चे के बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे के लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए है। ग्रैंड चाइल्ड तो आपके हिस्से में नहीं आएगा ना, आपका बच्चा अगर है तो आपके ग्रैंड चाइल्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वसीयत में कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, सिंपल सी कंडीशन, एक बच्चा ऑलरेडी है, ठीक है ना, आप उसका, आपका ग्रैंड चाइल्ड है या आपका चाइल्ड है, जो भी है, आप उसे कहते हैं अगर तुमने ग्रेजुएशन कर ली, या तुमने कोई फला कोर्स कर लिया, या तुमने कोई आलिम बन गए, व्हाटएवर जो भी है, या आपने कुरान हिफ्ज कर लिया, जब आपने कुरान हिफ्ज कर लिया या आपने जो भी कर लिया एक गिफ्ट की तरह से, तो वो भी आपके वसीयत में आप डाल, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब तक जिंदा रहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि यू गेट इतने % ऑफ माई वेल्थ, 2% 3% जो भी है, आपको पता है वो भी ना 1/3 से ज्यादा नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कंडीशन किसी के लिए। फिर ये है कि एक बात बहुत जरूरी है ये याद रखने के लिए कि जिसके बारे में वसीयत की है, अगर वो मार दे जिसने वसीयत की उसकी, यानी जो फौत हुआ है उसको, अगर ये बंदा जिसके बारे में वसीयत है, समझे मैंने वसीयत की पर्सन एक्स के लिए कि मेरा जो है वो इसको मिलेगा, अब अगर वो बंदा मुझे मार देता है, इवन एक्सीडेंटली मार देता है, तो वो वसीयत वैलिड नहीं रहेगी। यानी कातिल को मकतूल का जो विरसा है वो नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो अच्छा, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, मैंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में सब किया, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं वो देख पाए, नहीं सुन पाए, तो उनके लिए कि जो वसीयत करने वाला होता है, यानी समझिए अगर मैं वसीयत कर रही हूँ, जो वसीयत बना रहा होता है उसको टेस्टेटर भी कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको अरबिक में कहते हैं मूसी, मूसी जैसे साद से ना, वसिया से मूसी, उस शख्स को मूसी कहते हैं। तो एवरी एडल्ट मुस्लिम जिसके पास रीजनिंग एबिलिटी है, मतलब कि वो किसी ऐसी बीमारी में नहीं है कि वो सोच नहीं सकता है, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उसको तो उसके पास लीगल कैपेसिटी है कि वो अपना विल बना ले। एडल्ट मुस्लिम, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, चाहे वो एक जवान लड़का है जिसने अपनी जवानी में आ गया, ही हैज द कैपेबिलिटी टू रीजन। मूसी जो है उसके पर ये कानूनी हक है कि जो कुछ उसको डिस्पोज करना है उसका कानूनी हक होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि ये घर किसी को मैं वसीयत करती हूँ मसलन, तो वो घर का मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि मेरा अपना घर होना चाहिए कि मैं उसको दूं। अगर मेरा अपना घर नहीं है तो मैं नहीं कह सकती कि मैं मरूंगी तो ये घर फलां को मिल जाए। वो जिसका उसकी अपनी कानूनी हक उसको होनी चाहिए, इसको डिस्पोज, एंड इट शुड बी हिज थिंग, राइट, और हर थिंग। अच्छा, जो जिस वक्त विल बना रहे हैं, जिस वक्त वसीयत लिखवा रहे हैं किसी को, तो उस वक्त भी जो लिखवाने वाला है उसको ही और शी शुड बी इन सेन माइंड, होशमंदी में हो, और उसको कोई कंपल्शन ना हो, कोई उसको जबरदस्ती विल ना लिखा रहो। ये सब चीजें आपको पता है नॉर्मली भी हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि सेन हो, एडल्ट हो, सेन हो, और ये सब हमने हज में भी, हमने उसमें भी पढ़ा है बालिग होने की चीजों में, कि बालिग हो, सेन हो, माइंड होशमंद हो, एंड यू शुड नॉट बी अंडर एनी कंपल्शन। और खुद जो लिखवा रहा हो, ही और शी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, ही शुड नो कि उस विल का इफेक्ट क्या होगा। तो जो कुछ चीज वो ओन करता है उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है, उसकी वसीयत कर सकता है, और उसके पास ये भी हक है, समझिए कि मैंने एक वसीयत कर दी, लेकिन उसके बाद मेरे पास ये हक है कि अगर मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं नहीं मरी, तो मैं उसमें से किसी भी पार्ट को, पूरी वसीयत को भी चेंज कर दूं, पूरी वसीयत को खत्म कर दूं, या कि मैं उस वसीयत में से कोई हिस्सा उसमें से किसी वक्त भी एक और विल बना के उसको खत्म कर दूं, या इम्प्लीकेशन से खत्म कर दूं। ठीक है, मतलब अगर इसने, समझे मैं कहूँ कि अगर इसने ये नहीं किया तो ये, वो भी वसीयत में आ सकता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा सब चीजें समझा दूं ताकि कल को आपके जहन में नहीं रहे कि हमने वसीयत के बारे में ये नहीं पढ़ा। अच्छा, अब ये भी है कि अगर कोई मूसी है, वो अपना वेल्थ, अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपना जो कुछ भी है, ड्यूरिंग हिज और हर फाइनल इलनेस, टर्मिनली इल है, याद रखें, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसके बाद वो कहता है कि मैं ये फलां को दे दूंगा,
ठीक है ना, उस वक्त वो पूरा नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता है। इट विल बी काउंटेड एज 1/3 जो होगा, मतलब पार्ट ऑफ द 1/3 जो होगा वो उसमें से होगा, उसमें से वो पूरा अभी तक, मतलब वो गिफ्ट करने की बात हो रही, वसीयत की बात नहीं हो रही, सेल करने की या गिफ्ट करने की या किसी को देने की। इफ अ मूसी बाइज, sells or gives wealth away during his terminal illness या final illness, वो उस 1/3 में से कर सकता है, जो कि bequest होगा, जिसमें से शेयर करना है, उससे ज्यादा में नहीं कर सकता। मूसी जो है वो किसी को अपने बिहाफ पे एक एग्जीक्यूटर रख सकता है, आई थिंक उसको वसी कहते हैं, सादिया आई थिंक। तो वो मूसी जो है वो किसी को, मैंने लिखा हुआ नहीं एक्चुअली, कि वो एग्जीक्यूटर रख सकता है जो कि केयर टेकर होगा, उसके बच्चों के लिए भी हो सकता है एक केयर टेकर। देखिए, दो चीजें रख सकता है, एक वो एग्जीक्यूटर रख सकता है जो उसके डेट्स को दे, जिसको पेमेंट कर दे, पे ऑफ कर दे उसके डेट्स को, उसके कर्जे को पे ऑफ कर दे, वो एग्जीक्यूटर होगा, जिसको वसी कहेंगे। और एक जो है वो केयर टेकर भी रख सकता है इसके अलावा, कि जो उसके बच्चों का जो कुछ भी है, उसकी वसीयत में उसके बच्चों का जो कुछ भी है उसका ख्याल रखे, और वो सेम पर्सन भी हो सकता है। और अगर वो किसी अनट्रस्टवर्दी पर्सन को रख लेता है और पता चलता है कि ये बंदा सही नहीं है, तो उसके वारिस जो है वो जज को बता सकते हैं, और जज जो है उसको ओवर रूल करके एक और एग्जीक्यूटर रख सकता है। तो जो बेनिफिशियरी होता है, या तो आपको पता ही है कि जो बेनिफिशियरी होता है, जिसको विरासत मिलती है या जिसको वसीयत का भी हिस्सा मिलता है, वो भी वारिस हो जाता है, क्योंकि उसका विरासत में उसका हिस्सा आ गया वसीयत के थ्रू। एक तो वारिस है जो शेयर्स के थ्रू आया, जो अल्लाह ने कर दिया। इसके अलावा जो 1/3 जो है, अगर आपने वसीयत की है तो वो भी उसमें, उसको वो भी जिसको मिलेगा वो भी वारिस ही होगा। वारिस जो है वो उस वक्त, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे एक अगर प्रेग्नेंट है कोई, तो उसका बच्चा अगर फीटस है, वो पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन वारिस जो है इट शुड बी समबडी, हम ये नहीं कह सकते जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये एग्जीक्यूटर बनेगा। ही और शी शुड बी इन एग्जिस्टेंस जबकि मूसी अभी जिंदा है, और वो जब वो फौत हो तो उसके बाद भी वो जिंदा हो, मतलब अगर दो इकट्ठे मर जाए तो अलग बात है। तो ये है कि ही शुड बी एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द मूसी, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन द केस जहां पे उसने एक ऐसा जनरल या कंटिन्यूइंग वारिस है, जहां आपने कह दिया, आपने कहा ये मेरे फलां को मिलना चाहिए, मेरे फलां रिश्तेदार को, मेरी फलां दोस्त को, मेरे फलां उसको मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये वसीयत की कि ये बस जनरली पुअर्स को दे दो, फकीरों को दे दो, फकरा को दे दो, मसाकीन को दे दो, कुछ इसमें से ऑर्फन्स को दे दो, जितना भी है विडोज को दे दो, जब आपका कोई नाम नहीं है उसमें तो ठीक है, वो जिंदा हो या नहीं डजंट मैटर, इट इज अ जनरल थिंग। लेकिन अगर किसी का नाम आप ले रहे हैं कि फलां को मिले, तो वो बंदा शुड बी एग्जिस्टिंग। वो वारिस जो है वो अपने मस्ट बी केपेबल कि वो उस जो भी उसको जो दिया है, मतलब अब आपने इसे माइनर को बना दिया वारिस, ठीक है ना, अब वो वारिस आपने बनाए, वो एग्जिस्टिंग है, लेकिन क्या होगा कि अगर आप मरते हैं और वो बच्चे के नाम पे, अगर आप घर है समझिए, या घर का कोई हिस्सा है, या एक कुछ भी एक चीज है, गाड़ी है, तो वो ओन तो नहीं कर सकता ना उस गाड़ी को, तो इसीलिए उसको भी ही शुड बी, ही और शी शुड बी केपेबल ऑफ ओनिंग इट। अगर नहीं है तो वो किसी और के पास रहेगा जब तक कि वो ओन ना कर सके। अच्छा, अगर आप वसीयत कर रहे हैं किसी और को, अभी मैंने पहले बता दिया लेकिन दोबारा से ये रिपीट हो रहा है, पता नहीं मेरे नोट्स में शायद कुछ इसका पॉइंट होगा, कि वसीयत कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एनी लीगल हेयर ऑलरेडी एंटाइल्ड। हाँ, अच्छा नहीं, अगर कोई लीगल हेयर है जिसका ऑलरेडी हिस्सा है, उसके लिए अगर आप वसीयत करते हैं तो वो इनवैलिड है, ओनली अगर तमाम एयर्स जो हैं वो अग्री करें तो वैलिड हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि एक वसीयत अगर आप करते हैं इन फेवर ऑफ अ क्रिश्चियन और जूइश वाइफ, देखें एक मर्द जो है उसको इजाजत है कि वो एक जूइश से या क्रिश्चियन से शादी कर ले। इस्लाम में ये इजाजत है एक मर्द को, एक मुसलमान मर्द को, कि वो अपने लिए एक क्रिश्चियन या जू वाइफ कर ले, ठीक है ना, ये वैलिड है, ठीक है ना, वो कर सकती है। औरत नहीं कर सकती, औरत ना जू से शादी कर सकती है, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी नहीं कर सकती है। तो अगर एक मर्द कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए, जो मेरी जू है या क्रिश्चियन वाइफ है, उसके लिए मैं वसीयत करना चाहता हूँ, वो भी उसको 1/3 तक ही कर सकता है। क्यों करने के लिए कहा गया? क्योंकि कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कर लेना, क्योंकि शी इज नॉट अ लीगल हेयर। क्यों उसका लीगल, उसकी वारिस नहीं है? क्योंकि
ایک وارث جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ریلیجن, اچھا یہ میں بعد میں بتاتی ہوں, چلے یہ آگے میں نے لکھا ہوا ہے نوٹس میں. ایک وارث جو ہے ہی میں اور شی میں ایکسپٹ اور ریجیکٹ a bequest after the death of the موسی and not before it. یعنی کہ آپ نے, کسی نے میرے نام پہ, میرے ماں باپ نے میرے نام پہ کچھ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے. وہ جب فوت ہو گئے تو میں اس کے بعد, ان کی ڈیتھ کے بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں, میں یہ نہیں ایکسیپٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, میں نہیں ایکسیپٹ کروں گی تو نہیں ایکسیپٹ کروں گی. تو ونس میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد, اس کے بعد پھر میں چینج نہیں کر سکتی. میں اپنی وصیت چینج کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وارثوں میں سے ہوں تو میں سب سے ایک دفعہ ہاں کہہ کے نہ نہیں کہہ سکتی. تو اکارڈنگ ٹو دا جمہور آف مذاہب کہ دا رائٹ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ دا وصیت ہے, اگر میں مر جاتی ہوں تو وہ میرے ورثاء کو پاس ہو جائے گا. یعنی کہ وہ مجھے رائٹ تھا ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا, اور میں نے اس وقت ریجیکٹ کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے اگر اس وقت ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کیا اور میری موت آ گئی تو وہ میرے ورثاء کو. بہت کمپلیکیٹڈ ہے, کل مجھے کوئی بول رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے, یو کی ناٹ, یو جسٹ ہیو ٹو نو کہ یہ چیزیں ہیں. جب یہ وقت آئے گا کسی کے اوپر تو یو ول ہیو ٹو آسک اے اسکالر. یہ مت سمجھیں کہ آپ خود سے کریں گے, یو ول ہیو ٹو آسک اے اسکالر. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں وراثت کے لاز میں ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا حنفی فقہ, اگر وہ وارث فوت ہو جاتا ہے وداؤٹ ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ دا بیکویسٹ, جو اس کی جو وصیت تھی, تو وہ اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے, کیونکہ وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اس کی پراپرٹی بن گئی. کیونکہ اگر اس نے ریجیکٹ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کیا. دیکھیں, یا ریجیکٹ ہوگا یا ایکسیپٹ ہوگا. ایک وصیت ہے, میرے نام پہ کوئی چیز ہے, میرے ماں باپ نے کہا, اگر میں نے ریجیکٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ میں نے ایکسیپٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا ہے. تو جو خاموش رہ گیا, جس نے اس پہ آبجیکشن نہیں کی, اس نے ریجیکٹ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے. تو ڈفرنس آف اوپینین ہے ایٹ دا ٹائم ایٹ وچ دی اونرشپ آف اے بیکویسٹ از ٹرانسفرڈ فرام دا موسی ٹو دا وارث. اکارڈنگ ٹو دا حنفی اینڈ شافعی, دو فقہ میں یہ ہے کہ ٹرانسفر آف اونرشپ جو ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف دا موسی, وہ جیسے مرے گا جس نے وصیت کی تھی, تو وہ جو اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی جس چیز کی ہے ٹو دی پرسن جس کے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے. According to the Maliki and Hanbali faith, transfer of ownership جو ہے it is at the time of accepting the وصیت. اب سمجھے کہ میں نے وصیت لکھ دی, میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا, اپنے شوہر کو بتا دیا, اب سب کچھ میں نے کر لیا. اب اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اونرشپ اب ٹرانسفر ہوگی, کیونکہ یہ وصیت میں نے کر دی. ملے گا ان کو اسی وقت جب میرے مرنے کے بعد, کیونکہ وصیت کے انسٹرکشنز ہیں یہ وصیت ہو کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرانسفر ہوگی, لیکن اس کی ٹرانسفر آف اونرشپ جو ہے وہ مطلب کہ وہ وصیت جو ہے وہ اب ان کے حق میں وصیت ہو گئی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. اچھا, اگر وہ وارث جو ہے, وہ سمجھے کہ کسی کے لیے میں نے کوئی وراثت, میں نے کوئی وصیت کی ہے, کسی کے لیے بھی میں نے وصیت کی ہے, وہ مجھ سے پہلے مر گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وصیت جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی. تو میں نے پرسن ایکس کے لیے کیا, لیکن وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گیا, پتا تو نہیں کون پہلے جائے گا, تو وہ وصیت جو ہے انویلڈ ہو گئی. اگر انسرٹینٹی ہے کہ ویدر جو وارث جو ہے وہ سروائیو ہوا کہ نہیں ہوا, تو مطلب ایک مسنگ وارث ہے. یہ آج کل تو بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے, کوئی لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور مہینوں بعد, سالوں بعد ملتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو وہ وصیت بھی انویلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وارث کا پتہ نہیں ہے, 100% شور نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنٹ ہے. the وارث must be alive and or existent at the time of the death of the موسی for the وصیت to be valid. اگر موسی اور وارث دونوں اکٹھے مر جاتے ہیں, ایئر کریش ہوا, کار ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ بھی ہو گیا, زلزلہ آ گیا, کچھ بھی ہو گیا, وصیت کسی کے نام لکھا تھا لیکن میں بھی مر گئی اور وہ بھی مر گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ کون پہلے مر گیا کون بعد میں, تو وہ وصیت according to the حنفی, مالکی اور شافعی فقہ it becomes invalid. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ موت کے بعد یہ ٹرانسفر ہوتی ہے وصیت.
ठीक है ना, जो और वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अच्छा, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वसीयत को, वो एक्चुअली मैनेज कर रहा होता है ना, एग्जीक्यूट जो तो मैनेजर होता है, उसको हम खुद अपॉइंट करते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय जो वसी है उसको मूसी अपॉइंट करता है। जनरली क्या होता है इस्लामिक कंट्रीज में कि वो कादी होता है, जो वहाँ का, जिसको हम काजी कहते हैं या जिसको हम जज कहते हैं, जो मुस्लिम ममालिक में, जो अरब ममालिक है वहाँ पर काजी होता है और हमारे पास उसको जज कहते हैं। तो वो जज जो है, अगर मुस्लिम कंट्री में हम हैं तो वहां पर वो काजी जो है वो करते हैं, लेकिन जब वेस्ट पे हैं, हम लोग वेस्ट में रहते हैं, तो यहाँ कोई काजी नहीं है हमारे लिए, कोई ऐसा स्पेशल इस्लामिक कोर्ट नहीं है, कोई जज नहीं है, तो हमारे लिए ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं ऐसे मुल्कों में, उनके लिए ये बात मुमकिन है। तो वसी जो है, जो कि उसका जो एग्जीक्यूट करने वाला है, उसके ऊपर ये फर्ज है, ये लाजिम है कि वो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ जो चीजें मूसी ने उसको कहा था उसको वो इम्प्लीमेंट करे, उसकी विशेस को भी इम्प्लीमेंट करे, और उसके बच्चों का भी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस सब की बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम करे। तो वसी के लिए भी ये जरूरी है कि वो सेन हो, मैच्योर हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रूथफुल हो, जस्ट हो, ये सब चीजें जो हर विटनेस के लिए भी होता है, वसी के लिए भी यही सब चीजें हैं। और वसी जो है, मूसी जो है, वो इख्तियारात भी खुद ही स्पेसिफाई कर दे कि इस बंदे को ये करने का मैं हक देता हूँ, और ये अथॉरिटी दे रहा हूँ, और इस बंदे को ये अथॉरिटी दे रहा हूँ, बंदा हो या बंदी, मेल हो या फीमेल। और जिस तरह मैंने आपको बताया, देयर कैन बी मोर देन वन वसी, ठीक है ना, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस बच्चे के बारे में ये करे, और मेरे इस बच्चे के बारे में ये करे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी के बारे में ये करे, तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और लोग करते भी हैं कि कभी कहते हैं कि जो बेटी है, ये मैं फलां को गार्डियंस भी बना देते हैं, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, उस तरह के। अच्छा, मूसी जो है वो ये भी बता दे कि ये वसी जो काम करेगा, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो मैंने इसको इख्तियारात दिए, या ये मिल के दूसरे जो वसी हैं उनके साथ काम करेगा, ये भी बताना जरूरी है उसके लिए। और वसीयत के लिए कोई स्पेशल वर्ड्स जो हैं वो जरूरी नहीं है, वर्डिंग्स, एज लॉन्ग एज वो क्लियर हो, ठीक है ना। वसीयत ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको पता है कि रिटर्न हो तो बेहतर होता है, एज लॉन्ग एज आपके पास विटनेसेस हो। कभी कभी होता है रिटर्न का टाइम नहीं होता है, आपने अपने बच्चों से कह दिया कि भाई प्लीज ये है, ये है, ये करना, ये मेरी वसीयत है, ये मेरे वो है, ये मेरी ख्वाहिशात हैं कि मेरे मरने के बाद आप ये करना, वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर दो गवाह होना जरूरी है, वो दो गवाह होना चाहिए जिसकी वजह से कोई गड़बड़ ना हो, ताकि अगर एक गवाह, और आपको पता है गवाही के लिए जरूरी है कि दोनों गवाह ट्रूथफुल हों, गवाही के लिए भी, विटनेसेस के लिए भी ये है कि वो सही हों, ठीक है ना। और वो गवाह जो है, अब देखें, आपने जो अभी मैंने आपको बताया ना, अपने बच्चों को आप कह दें, बच्चों को तो आप कह देंगे, लेकिन बच्चों का तो अपना शेयर भी है ना, तो इसलिए जो आप गवाह बनाएंगे वो बच्चों के अलावा किसी को गवाह बनाएंगे, जो आपके वारिस में से नहीं हो, जो आपके वारिस में से नहीं हो उसको आप गवाह बनाएंगे, तो ताकि कोई ऐसा खदशा ना हो कि बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दी, करते हैं बच्चे गड़बड़। तो अकॉर्डिंग टू द मालिकी एंड हम्बली फिक, अगर कोई भी विटनेस नहीं है और एक रिटन वसीयत, समझो कि मैं लिख देती हूँ, मैंने एक लिख दिया, बस एक ओरल डिक्लेरेशन कर दी, या एक मैंने वसीयत लिख दी, और तो वो वैलिड है। इफ इट इज रिटन इन माई हैंड राइटिंग, एंड उसको मैंने साइन किया, वो अपने हाथ से अगर मैं कुछ लिख देती हूँ, राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू द मालिकी एंड हम्बली फिक, अगर कोई भी विटनेस नहीं, फिर भी मैं अपने हाथ से लिख के रख दूं। कभी कभी होता है कि आप लॉकर में छोड़ जाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये हो, ठीक है ना। तो मूसी जो है उसको ये उसमें क्लियरली हो कि ये वसीयत है, और ये मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मरने के बाद की है, ठीक है ना। तो वसीयत जो है वो किसी ऐसी चीज के लिए कर सकते हैं जो कि आप ओन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, गारमेंट्स जो भी हैं, आपके पैसे हो सकते हैं, जो भी चीज हो सकती है, कि या कोई ऐसा हक हो, ये चीज हो, या कोई ऐसा हक हो जो कि वैलिड इन शरिया है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं मरूं, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, लेकिन समझो कि मैं मरूं और मैं कहूं कि मेरे इस घर में फलां को रहने का हक है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो भी मैं वसीयत कर सकती हूँ। मेरा अपना घर है, मैं कह सकती हूँ कि इसको मैं ये हक दे रही हूँ, ठीक है। तो तो अगर वसीयत है, इफ द वसीयत इज फॉर अ हक, जैसे एक घर के लिए, तो वो इट विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर्स,
मतलब ये कि वो घर तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना, वो घर तो अब एयर्स का हो गया, इनहेरिट हो गया, मेरे बच्चों की हो गई, मेरे शौहर का हो गया, जो अगर मेरा कोई घर होता तो वो उनका हो जाता। लेकिन उसका, उस बंदे को जो हक है, आप हमारे मेरे वारिसों को चाहिए कि वो उनको उसका द बेनिफिशियरी ऑफ द वसीयत विल हैव द राइट टू स्टे इन द हाउस, जो मैंने टाइम स्पेसिफाई किया, क्योंकि वो मैंने मेरी वसीयत में था। और वो भी आपको पता है कि 1/3 तक की वसीयत हो सकती है। तो वसीयत में भी जनरल या स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, और कि मतलब इतना एग्जैक्टली 10,000 की मैं वसीयत करती हूँ, मतलब मैं वसीयत कर रही हूँ कि 10,000 मेरे पैसों में से जो है वो किसी को दे दिया जाए, या 15,000 जो है वो फला ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए। और या तो मैं कहूँ कि मेरा जितनी भी वेल्थ है उस वक्त, मेरे मरते वक्त, उसमें से 1/4 या 1/5 या 1/3 अप टू मैक्सिमम ऑफ 1/3 जो है फलां को दे दिया जाए। अब देखते हैं कि वसीयत की बातें हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वसीयत किस किस किस्म की होती है? 4 किस्म की वसीयत होती है। एक जो है जो वाजिब है, कि मतलब वो कर लेना चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है। जो दूसरी जो है वो मुस्तहब है, यानी इट इज रिकमेंडेड। तीसरी जो है वो जायज है, इट इज अलाउड, मुबाह। एंड चौथी जो है वो हराम। वाजिब, मुस्तहब, जायज और हराम। वाजिब कौन सा है या लाजिम कौन सा है? वो जो कंपल्सरी है। इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज फर्द, इट इज वाजिब फॉर अ पर्सन टू मेक अ वसीयत, अगर उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां या कुछ वाजिबात हैं, अगर उसके ऊपर कुछ लोन्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, तो उसको चाहिए कि वो डिक्लेयर कर दे कि ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये मेरे लोन्स हैं, और वो डिक्लेयर कर दे, विटनेस भी करे और उसको राइटिंग में भी डाल दे, ताकि वो उसके मरने के बाद वो पैसा, लोन जो अगर नहीं चुका सके थे वो चुका दी, या कोई जिम्मेदारियां हैं, मेरे जिम्मे फला है या मेरे जिम्मे। बाज दफा ये भी होता है पाकिस्तान में कि वो उनकी एक सेकंड वाइफ भी होती है और फर्स्ट वाइफ को पता नहीं होता है, और बच्चे भी होते हैं, वो भी उनको पता नहीं होता है, तो वो उनको लिख देना चाहिए कि वो भी मेरी बीवी है। और जो है, मतलब औरों को पता होगा, लेकिन वाइफ को छुपा के तो नहीं रख सकते ना बीवी को, वो तो मना ही है। योर मैरिज हैज टू बी डिक्लेयर्ड। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से ना डिक्लेयर कर सके हो, कोई कि दुश्मनी का कोई खदशा हो, कोई उसकी लाइफ की थ्रेट कोई थ्रेट हो, तो इसलिए फिर ऐसे में वो लिख सकते हैं। ऐसी लाइबिलिटीज में वो कर्जे भी आ जाते हैं जो कि आपने अभी, मैंने इस महीने का बिल नहीं पे किया, ये कोई पे कर देना, मतलब अगर मैं मर गया तो मैंने इस महीने का पे नहीं किया, मैंने ज़कात नहीं पे की, जो मेरे पास फलां की अमानत है। ये भी बहुत जरूरी है कि मेरे पास फलां की अमानत है। जैसे लोग आके कभी जेवर रखवा जाते हैं, कभी पैसे रखवा जाते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है, कोई मेरे पास जेवर रखवाता है और पैसे लेता है। मेरी अम्मी के साथ भी होता रहा है। तो मतलब कोई अगर आपके पास जेवर रखवा लेता है, कोई चीज रखवा लेता है, तो वो भी उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। वो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उस बंदे का एक आपके ऊपर एक अमानत है। वो अमानत वापस करने के लिए आप जरूर वसीयत बनाएं। अगर ऐसा नहीं, हाँ एक और बात भी है कि अगर आपका कोई बेटा था समझे, और वो फौत हो गया है, और उस बेटे के बच्चे हैं, यानी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उस ग्रैंड चिल्ड्रन को तो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए भी ऑब्लिगेटरी है कि आप वसीयत बना लें। उस बच्चे को नहीं, देखिए ये उनके चचाओं और फुप्पियों और उन पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चों को देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप वसीयत बना देंगे तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि आपके जिस बच्चे की औलाद है और वो बच्चा नहीं है, तो उसको वो मिल जाए ना, जो जो ग्रैंड चिल्ड्रन को मिल जाए, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट है आपकी किसी के साथ, या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो अपने बच्चे के लिए आप गार्डियन किसको बनाना चाहते हैं? आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपका या माँ बाप के घर में या ससुराल में जो भी है, तो वहां पर आप अपने बच्चे के लिए किसको गार्डियन बनाना चाहते हैं? सपोज मियाँ बीवी में से एक बच्चा है और एक चला गया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए फना गार्डियन बने, मेरी देवरानी बने या जेठानी बने, मेरी नंद बने या मेरी माँ बने, मेरी बहन बने, मेरी भाभी बने, जो भी है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जॉइंट अकाउंट, जो मैं कह रही हूँ आजकल अक्सर ये होता है कि मियाँ बीवी की जो अकाउंट्स हैं वो जॉइंट होते हैं। जब जॉइंट अकाउंट होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि कितना मेरा था कितना मेरे मियाँ, खासकर अगर दोनों कमा रहे हो। अगर मैं भी उसी में डिपॉजिट कर रही हूँ, वो भी उसी में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कि अब तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ थी कमाने की, तो उस वक्त हमारा यही होता था कि एक ही अकाउंट था और दोनों उसी में डाल रहे थे। तो मैं इसलिए अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं किसी को मौत के उस पर नहीं खड़ा करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ही बताऊं तो आपको फील ना हो कि मैं कह रही हूँ अगर आप मरने लगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपने बारे में बात करने का।
तो उस वक्त ये होता था हम दोनों कमा रहे थे, तो मेरे बेटे ने यहाँ पर पूछा हमसे कि देखिए आप लोगों का सब एक ही अकाउंट में है, तो ये आप पता तो होना चाहिए ना कि किसका कितना है, ताकि फिर अकॉर्डिंगली जब आप लोग को जब कुछ भी हो खुदा ना खास्ता तो फिर हमें पता होना, कुछ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। दीन में इंसान को पक्का होना चाहिए, इसमें इमोशंस को नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसने कितने पैसे डाले थे, तो उसके लिए एक वसीयत अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा है, इट बिकम्स काइंड ऑफ जरूरी। और अगर आप सेपरेट अकाउंट्स रखें तो इट बिकम्स इजी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाएगी और इनहेरिटेंस भी करेक्टली सबको मिल जाएगा, क्योंकि हस्बैंड फौत हो तो वाइफ का शेयर होता है उसमें, वाइफ फौत हो तो हस्बैंड का शेयर होता है, बच्चों का तो सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू सम फुकाहा वो कहते हैं ऑब्लिगेटरी है वसीयत बनाने के लिए ज़कात के लिए। और मैंने आपको बताया था, याद है हमने उस दिन डेट्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ लोगों के बारे में ये है कि ये बच्चों के ऊपर, ये वरसा के ऊपर लाजिम है कि वो ये कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वसीयत है तो करें। तो अगर वो फुकाहा ये कहते हैं कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर देम कि वो ये बता दें कि मैंने ज़कात कितनी नहीं दी है और मेरे ऊपर कितने मिस्ड फर्द फास्ट हैं, अगर मैंने फिदिया नहीं दिया है उन फास्ट का तो मुझे लिखा। इसीलिए बेहतर ये कि जो जिस रमजान में आपसे जो रोजे मिस हो उसी वक्त उसके बाद फौरन मेकअप कर लें, नहीं मेकअप कर सकते हैं तो फिदिया दे दें। और फिर किसी ने जिसने हज नहीं परफॉर्म किया वो भी वसीयत में लिख दें। जिन कंट्रीज में सक्सेशन लॉ डिफरेंट होता है इस्लामिक लॉ से, उसमें तो मैंने आपको बताया एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है कि वसीयत आप लिखें, क्योंकि वो इस्लामिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होंगे, ताकि अकॉर्डिंगली इस्लामिक लॉ के मुताबिक आपकी इनहेरिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ तो आपको पता है ना कि अगर आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, खामखा वो जो झगड़ा हो जाता है कि ये मेरा घर है ये तेरा घर है, ठीक है ना। तो अगर कोई इस्लामिक विल छोड़ के नहीं मरता है तो फिर उसके इट बिकम्स नेसेसरी कि उसके जितने भी इनहेरिटर्स हैं, जितने भी वरसा हैं, वो इंश्योर करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस्लामिक गाइडलाइंस के, समझे कि मैंने नहीं बनाया, मैंने विल नहीं बनाया, तो फिर क्या है, ये मेरे बच्चों के ऊपर ये लाजिम है और मेरे शौहर के ऊपर लाजिम है कि वो लोग जो हैं कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि जरा सा भी इसमें गड़बड़ करना इज अ बिग बिग सिन, ठीक है ना, इन द साइट ऑफ अल्लाह। तो द एस्टेट जो भी मेरे पास कुछ भी है, अगर $10 भी है तो इट शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग माय एयर्स, ठीक है ना। अपने वाजिब वसीयत जो है उससे आप कतराएं मत, वो कर ले कम से कम, क्योंकि वो जरूरी है। आपने बता देना है मेरे ऊपर कितना कर्जा है, किसके पैसे मेरे पास है, किसकी अमानत मेरे पास है, मेरे कितने रोजे अभी छूटे हैं जिनके मैं नहीं पिए, वो सब कुछ कर ले। अगर सब कुछ आपने किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बच्चों को सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तहब वसीयत कौन सा होता है, यानी कि आप ये बता दें कि मेरा गुसल जो है, मेरा कफन दफन है, वो सब कुछ सुन्ना के मुताबिक करें। अब आपके बच्चे अगर नेक हैं और इस्लाम पे चलने वाले हैं तो वो करेंगे इंशाल्लाह, वही आपका सदका जारिया है, वो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक बता दें, ये बता दें उनको कि देखें जब मैं फौत होंगी तो मेरे पीछे कोई बिदत वाली कस्टम्स ना करें। ये जो मरने के बाद जो करते हैं, स्वयं करते हैं, कुल करते हैं, स्वयं करते हैं, आई थिंक दोनों एक ही चीज है। 10वां 20वां 40वां बरसियां और अजीब अजीब किस्म के वो ये खत्म और वो खत्म और ये सब, वो सब चीजें जो हैं, वो तमाम जो बेदा चीजें हैं, वो पहले से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को और अपने शौहर को या अपने वाइफ को ये बता के मरें कि भाई ये प्लीज मेरे लिए नहीं करना। आपने बता दिया, आपने फर्ज उतार लिया, अब अगर वो ना करें तो गुनाहगार वो होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि मैं और आप, हम सब के, हमारे जो अभी जिनके बच्चे हैं, मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि हम सब के बच्चे जो हैं वो इस्लाम पे चलने वाले हैं और बिदा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ऐसे कस्टम्स, कोई ऐसे रस्म और रिवाज नहीं करेंगे जिससे गुनाह मिले, ठीक है, उनको गुनाह मिले। मैं तो बोल के मेरा तो पता है, लेकिन उनको पता है कि वो खुद अगर करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि इट इज मुस्तहब, प्रिफर्ड है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो जाहिर है आपके वरसा में तकसीम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ये भी प्रिफर्ड है कि आप किसी मस्जिद के लिए या किसी मदरसा के लिए, गरीबों के लिए या रिश्तेदारों के लिए करें। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है ना। ये एक मतलब ये वसीयत इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और थोड़े पैसों में भी आप कहते हैं मेरे सारे पैसे किसी को, खैर आप सारे पैसों का तो कर ही नहीं सकते, भूल जाती हूँ बार बार, तो आपके जितना भी, ये समझे आपके पास $300 है आपके, इसमें से 1/3 मैं कर सकती हूँ, 100 किसी और को दे दो। अब आपके बच्चों को ही वो 100 मिल जाए एक्स्ट्रा अगर आपके बच्चों के लिए तो ठीक है,
कोई हर्ज नहीं है. देयर इज मोर मेरिट कि आप छोड़ें अपने बच्चों के लिए. अच्छा, तीसरी किस्म की जो वसीयत है वो क्या है? जायज़, परमिसिबल है. यानी आप ऐसी चीज़ की वसीयत कर लें कि जैसे उस दिन हो रहा था, शेख फ़की आए हुए थे, शेख फ़की ने जनाजा पढ़ा ब्रदर वलीद का. तो मैं जनाजा हो रहा था और सारा वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं भी ये कहकर मरूं या अल्लाह कि मेरा शेख फ़की आके मेरा जनाजा पढ़े. बस दिल में हो रहा था ये. लेकिन फिर मैंने सोचा कितनी मुश्किल बात है ना, मैं यहाँ मरती हूँ, पाकिस्तान में मरती हूँ, दरिया में मरती हूँ, जहाज पे मरती हूँ. मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं मदीने में फौत हूँ, तो मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ ना. इंशाल्लाह मदीने में अगर मौत आएगी तो मदीने के जो इमाम है वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जनाजा. तो ये इजाजत है, मेरे कहने का मतलब है कि इजाजत है, आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए तकलीफ हो जाएगी. फिर आपको जिस तरह मैं बता रही थी कि हाँ, कि आप, मैंने कहा ना मैं आगे आपको डिटेल बताती हूँ. डिटेल ये है कि एक परमिसिबल है, आपको इजाजत है कि आप अपनी जो मर्द है वो अपनी क्रिश्चियन या जूइश वाइफ के लिए वसीयत करके मरे. और रीजन इसकी क्या है, मैं रीजन बताते बताते रुक गई, क्योंकि एक मुसलमान से नॉन मुस्लिम इनहेरिट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू इस्लाम. अगर आपके माँ बाप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या जो भी हैं या बच्चे कोई भी अगर मुसलमान नहीं है और आप मुसलमान हैं तो आप उनसे इनहेरिट नहीं कर सकते. या अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आप तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई मुसलमान, मतलब ये समझ लें नॉन मुस्लिम जो है मुस्लिम से इनहेरिट नहीं कर सकता और मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम से इनहेरिट नहीं कर सकता. तो इसीलिए जब किसी की वाइफ है जो जूइश है या क्रिश्चियन है, जिसको इजाजत है कि वो शादी कर सकता है मियाँ, उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसको इनहेरिटेंस में से, अमेरिकन इनहेरिटेंस में तो उसको मिल जाएगा ना वाइफ को. लेकिन इस्लामिकली अगेन बात ये है कि 70 साल तक आपने अच्छी डीड्स की और उसके बाद जाके लास्ट आपका जो है गड़बड़ हो गया. तो आप वसीयत कर लें कि बाकी तो मेरे जो इनहेरिटर्स हैं उनको मिलेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मर्द के लिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है मुस्लिम वाइफ नहीं है, तो उसको 1/3 तक का जो है उसके लिए शेयर कर सकते हैं. दुनिया में आप उसको बना के दे सकते हैं, घर बना के दे दें, जो भी बना के दे दें, ताकि वो तकलीफ में ना आए. और ये हदीस भी बुखारी में और मुस्लिम है, मुत्तफकुन अलैह. द मुस्लिम डज नॉट इनहेरिट फ्रॉम द काफिर एंड द काफिर डज नॉट इन disbeliever and the disbeliever does not inherit from the Muslim. तो यही रूल मैंने बताया मियाँ बीवी का जैसे है वैसे ही बच्चों के लिए भी यही है. इस पे मुझे याद है, मुझे 2-3 दिन पहले किसी लास्ट वीक किसी ने मुझसे फोन पे बात की थी और मुझे ये बताया था कि कोई पेरेंट्स हैं जो बड़े परेशान है कि उनका एक बेटा जो है वो ऐसे लगता है कि वो, मतलब ऐसी हरकतें करता है जिससे पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं है. अब ये है कि मैंने कहा कि आप उनको किसी स्कॉलर के पास ले जाएं और उनसे कहें कि उससे पूछे ना डायरेक्टली कि आई यू अ मुस्लिम और यू आर नॉट अ मुस्लिम. कहते हैं वो बच्चा राजी नहीं होता है कि मुझे, बड़ा है, अडल्ट है, कि मैं जाऊं स्कॉलर के पास. माँ बाप के सामने भी नहीं करता है, और फिर अगर माँ बाप ज्यादा कहेंगे तो फिर जाहिर है बच्चे बदतमीजी पे उतर आएंगे. तो अब उसका क्या होगा, उनको हिस्सा मिलेगा विरासत में अगर तो आपको मालूम है 100% कि ये मुसलमान नहीं है, ऐसी हरकतें कर रहा है, ये मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं जो, देखें सऊदी में तो वो यही कहते हैं कि अगर आपने 3 दिन तक नमाज नहीं पढ़ी तो आपका इस्लाम ही चला गया. लेकिन ये हदीस है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. तो अगर आजकल हमारे कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है मुसलमान है, वो जुमे भी पढ़ लें तो भी काफी होता है, ईद पे भी पढ़ लें तो भी कम से कम नमाज तो पढ़ रहे हैं ना. मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि वो छोड़ दे नमाज, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर पढ़ लें तो पता तो चलता है ना कि वो मुसलमान है. अगर इस बेटे की हरकतें ऐसी हैं कि वो पता चल रहा है कि मुसलमान नहीं है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फिर वो इनहेरिट तो नहीं कर सकेगा आपके पैसों में से, लेकिन उसके लिए अगर वसीयत माँ बाप हैं लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज परमिसिबल कि आप नॉन मुस्लिम के लिए वसीयत कर लें, नॉन मुस्लिम के लिए भी वसीयत कर लें, लेकिन अगेन वो उसी में से आएगा 1/3 के अंडर. अगर आपको ये मालूम है कि वो औलाद जिसके बारे में बात थी, जो मुझसे किसी ने पूछा था, मैं उसका नाम अभी नहीं ले रही हूँ, तो वो जिन्होंने पूछा था तो उन्होंने भी किसी और के बारे में पूछा था. अगर मालूम है कि वो औलाद जो है वो गलत चीजों में खर्च करेगा, वो इस्लाम के अगेंस्ट खर्च करेगा, और या तो फिर वो पैसों से अपने गलत दीन की तरफ आगे बढ़ेगा, तो फिर उसके लिए भी बेहतर ही है कि वो वसीयत ना करें. हराम वसीयत कौन सी, अनलॉफुल हराम, आपको मैंने बताया एक है जरूरी लाजिम ऑब्लिगेटरी, एक है प्रिफर्ड
और तीसरा मैंने आपको बताया अलाउड जो परमिसिबल है, और चौथा ये जो हराम है। हराम क्या है? अगर किसी को हार्म करने के लिए आपने कोई वसीयत की, मसलन आप चाहते हैं कि फलां को नुकसान पहुंचे, मेरे पास 2 बेटे, मैं एक बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो मैं सब एक, तो वो आप अगर किसी और को वसीयत कर देते हैं 1/3 के मेरे बेटे को नुकसान पहुंचे या कुछ भी हो, तो फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई करे, लेकिन तो फिर वो हराम हो जाता है। या अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या 2 बीवियां हैं तो एक को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये चीजें परमिसिबल नहीं है। इसी तरह वसीयत जो मैंने आपको बताया ना कि आप ये वसीयत कर लें अपनी औलाद को कि मेरे पीछे से ये सोयम और 40वां और 10वां 20वां और ये सब नॉन इस्लामिक अन इस्लामिक कस्टम्स ना करें, तो इसी तरह ये भी हराम है कि आप किसी को कहें कि मेरे लिए सोयम करना, 40वां करना, बरसी करना। अगर आपको ये हुक्म है कि आप कर सकते हैं, प्रिफर्ड है कि आप अपने बच्चों को बता दें कि ना करें, अगर आप ये उनको कहते हैं कि ये करना, मेरे मरने के बाद ये तुम इतने लोगों को बुलाना और तुम ये करना और ये खत्म करना और वो खत्म करना और ये सब, तो वो हराम है, क्योंकि आप उसकी अपनी सेलिब्रेशन बता रहे हैं अपने मरने के बाद। या आप किसी को कह दें जब मैं मर जाऊं तो मेरी बरसी करना, या फला कब्र पे फला मजार पे चादर चढ़ा देना। पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी इसमें सुन रहे हैं कि मैं जब मर जाऊं तो फला के दरबार पे जाके उधर एक, या फला के मजार पे जाके कब्र पे जाके आप चादर चढ़ा देना। ये सब यहाँ वाले शायद नहीं समझेंगे। कुछ फुकहा ये भी कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ के भी लोग कहते हैं कि आप डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट ना करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, तो इसीलिए कुछ फुकहा आर ऑफ द ओपिनियन कि इट इज हराम टू मेक अ वसीयत कि हमारी बॉडी को दूसरी कंट्री, लोग करते हैं ना, लोग कह देते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं दफनाना, मुझे पाकिस्तान जाके दफनाना, तो वो भी कुछ फुकहा ये कहते हैं कि ये हराम है। अच्छा, फिर इसके बाद ये किसी, अभी मैंने आपको बताया था उस बच्चे के बारे में, लेकिन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में, अगर आपको पता है कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि हराम एक्टिविटीज में आपका पैसा खर्च कर सकता है और इन डिसोबीडियंस टू अल्लाह, तो उसके लिए भी आप वसीयत हराम है बनाना। इट इज हराम कि आप उन चैरिटीज के लिए जहाँ के नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई चर्च बन रहा है या कोई मंदिर बन रहा है या जो भी बन रहा है, टेम्पल बन रहा है, जो भी बन रहा है, उनके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए आपके खैर खैर ये उनको दे देना, मैं मर जाऊंगी, तो वो भी सिंफुल पर्पस है, अल्लाह के साथ शिर्क करने के लिए है, तो उसमें भी उसको वो हराम हो जाएगी वो वसीयत ही। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो वसीयत के बारे में लोग हमसे पूछते रहे, अभी भी पूछते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सबसे पहले लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है कि हम अपनी ज्वेलरी क्या अपनी बेटी के लिए छोड़ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपकी बेटी आपकी एयर है, आपके विरसे में उसका हिस्सा है ऑलरेडी, उसका फिक्स्ड शेयर है, तो ऐसी वसीयत नहीं करनी, ये वसीयत नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी डॉटर है, आपकी बेटी है, अगर उसकी डिपेंड करता है कि आपके बाकी heirs हैं, अगर आपके हस्बैंड और आपके बाकी बच्चे जो हैं, अगर आपके माँ बाप भी जिंदा है, तो उन सबको अगर कोई एतराज नहीं है, जबरदस्ती नहीं, विलिंगली वो अग्री करते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है इसको दे दो, क्योंकि वो कहने को तो वो कह देंगे सबके सामने, अपनी शर्म से अपनी हया से, एक कहते हैं ना तकल्लुफाना वो कह देंगे, तो इस तरह नहीं, वो खुद ही विलिंगली आपको कहें, आप उनसे अलग अलग बात करें, सबके सामने बात ना करें। और अगर वो कहते हैं कि खैर है कोई बात नहीं, जेवर है, तो ये मुझसे उस दिन भी किसी ने पूछा था, तो अगर सभी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है इसको दे दो, क्योंकि वो उस बाकी लोग पूछते हैं जेवर है तो हम बेटे को, किसी ने ये भी कहा मुझे उस दिन कि जेवर है तो बेटे को कैसे दे दें, बेटा नहीं तो बेटे की बीवी तो है, बेटे के बच्चे तो हैं, उनको मिल जाएगा, बेटा बेच देगा, बेच के अपने लिए खर्च कर लेगा। या आप अभी किसी ने और ने ये कहा, तो उसको किसी ने ये मशवरा दिया कि अपना तमाम जेवर आप खुद ही अभी बेच दें और उसको बेच के उसके बदले आप कॉइन्स ले लें या आप वो ब्रिक्स ले लें और वो सबको इक्वली बांट दें, आपको बांटना है तो। ओनली अगर विलिंगली वो अग्री करते हैं तो आप ऐसी वसीयत बना सकते हैं। अगर वो अग्री नहीं करते हैं कि समझिए कि कोई मेरा एक बेटा एक बेटी है, अगर मेरा बेटा अगर समझिए कि वो नहीं अग्री करता है कि मैं बेटी को तमाम जेवर दूं, जो मैं करूंगी भी नहीं, लेकिन अगर वो कहेंगे तो फिर वो नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। अगर कुछ अग्री करते हैं कुछ नहीं अग्री करते, मेरा तो एक बेटा है चले, लेकिन ये कि जब कोई आपके पास ज्यादा बच्चे हैं, कोई अग्री कर रहा है कोई नहीं अग्री कर रहा है, हस्बैंड अग्री कर रहा है नहीं अग्री कर रहा है, तो जो अग्री करेगा उसके गोल्ड का हिस्सा जितना बनता है वो आप उस लड़की को दे सकते हैं। ये पूछा था उस दिन, मुझे ये जवाब याद नहीं आ रहा था, उसके गोल्ड का हिस्सा आप उस लड़की को दे सकते हैं। जो नहीं अग्री कर रहा है उसके गोल्ड का हिस्सा आप नहीं दे सकते हैं, वो उसी को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चे को आँख कर सकते हैं?
اگر بچہ نافرمان ہے, یہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے, دوسرا بچہ بہت خیال رکھتا ہے اور یہ خیال نہیں رکھتا ہے, تو خیال رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے, چاہے وہ آپ پہ خرچ کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو. تو the clear answer is no. It is a major sin. کسی کو بھی آگ کرنا, یہ شریعہ کی جو ٹیچنگز ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے, اس کو کانٹریڈی ہیں, اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے ہیں, اور یہ بات ہم آیا نمبر 7 میں بھی کر چکے ہیں اور 11 میں بھی کر چکے ہیں. And there is no difference of opinion among scholars about this, کہ جو اپنے بچوں کو ڈپرائیو کرے گا, محروم رکھے گا ان کے شیئر آف انہیریٹنس سے, یا کسی کو کم دے گا, کسی کو زیادہ دے دے گا جو اس کا شرعی حق سے, مطلب صرف آنکھ کرنے کی والی بات نہیں, کسی کو کم زیادہ بھی دے گا, وہ میجر سن کمٹ کر رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے خود فکس کیے ہیں, اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں, اور اس کا جو ہم اللہ کی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا, جو مذاق کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی آنے والے نیکسٹ ویک ہماری آیت آئے گی, آیت نمبر 14 میں آئے گا. اسی سے ملتا جلتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی وارث کو میں اپنا ایک گھر یا ایک لینڈ ہے وہ میں اس کو دے دوں ایکسٹرا, تو وہ بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجسٹس نہیں کرو, بی فیئر. یہ بھی ہم ابھی پڑھ چکے تھے, بی فیئر ٹو یور چلڈرن. دونوں میں ڈفرینشیٹ آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو کیوں ڈفرینشیٹ کرنا ہے؟ ہاں, اگر ایک بہت زیادہ غریب ہے, دیر از اے ریزن, اسپیسیفک ریزن, تو میں نے آپ کو بتایا تھا, تب آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ایک اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. نعمان ابن بشیر جو تھے, انہوں نے یہ کہا کہ his father came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, انہوں نے یہ بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں, مطلب یہ اب نعمان ابن بشیر کے ابو کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بیٹے کو ایک سلیو دیا ہے, ایک نوکر, ایک سلیو دیا ہے اپنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سب بچوں کو برابر دیا, سملر گفٹ دیے؟ برابر نہیں, سملر. اگر اس کو سلیو دیا تو اس کو اور کچھ دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین ٹیک اٹ بیک, ٹیک اٹ بیک. ایک اور ورژن ہے, وہ بھی بخاری میں اور مسلم میں, وہ بھی نعمان ابن بشیر کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے ایک گفٹ دی, سم آف ہز ویلتھ انہوں نے دی, اور گیو می, ان کو دیا. لیکن ان کی امی نے کہا میں اپروو نہیں کرتی ہوں, میں اپروو نہیں کرتی ہوں جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہیں کہ وہ وٹنس کریں. تو وہ گئے نبی, دیکھیں ان کے زمانے میں کتنا آسان تھا. تو وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو کہا کہ آپ بیئر وٹنس کریں کہ یہ میں گفٹ دے رہا ہوں اپنے ایک بیٹے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے تمام بچوں کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ. انہوں نے کہا آپ اللہ سے ڈرو کہ آپ اپنے چلڈرن میں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو. تو پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ گفٹ جو ہے وہ واپس لے لیا. ایک ورژن ہے جو مسلم میں ہے, میسنجر آف اللہ سیڈ کہ مجھ سے مت پوچھو کہ میں یہ اسی کے بارے میں کہ مجھے وٹنس کرنے کو نہیں بولو, کیونکہ میں انجسٹس کی وٹنس نہیں کر سکتا. The word is injustice, okay? فیئر ہونا یعنی جسٹ ہونا, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایک بچے کو شرعی ریزن کی وجہ سے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک وہ جسٹس, دیکھیں ایک ہوتا ہے برابری, ایکوالٹی. ہم ایکوالٹی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم اس میں یہ ہے, ایک سیکنڈ. تو ایکوالٹی کی بات نہیں ہے, جسٹس کی بات ہے. ایکوالٹی میں یہ, جیسے میں نے پتہ نہیں پہلے بھی اگزامپل دیا کہ نہیں دیا ہے, جلدی سے کرتی ہوں. کہ سمجھے کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں. اب وہ ایک بیوی جو اس کو کتابوں کا شوق ہے, پڑھنے کا شوق ہے, تعلیم کا شوق ہے. دوسری بیوی اس کو فیشن کا شوق ہے, کپڑوں کا شوق ہے. آپ کے نہیں, میں تمہیں بھی بکس لا کے دوں گا, اس کو بکس لا کے دیا تمہیں بھی بکس لا کے دوں گا. جس کو کپڑوں کا شوق نہیں ہے اس کو نہیں, میں تمہیں بھی یہ کپڑے دوں گا, تم بھی, مجھے برابر کرنا ہے. سو برابری نہیں ہے, بچوں میں بھی برابری نہیں کرنا ہے, جسٹس کرنا ہے. اب اگر ایک بچہ آپ کا غریب ہے, ایک بچہ کے اوپر قرضہ ہے, ایک آپ کی کوئی ڈیورسڈ بیٹی ہے یا آپ کی بیوہ بیٹی ہے, یا آپ کا ایک ایسا بچہ ہے جس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, یا اس کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے, مطلب وہ فلی میچورڈ نہیں ہے, ریزننگ نہیں ہے کہ وہ خود ارن بھی نہیں کر سکتا, he cannot even take care of himself, then there is nothing wrong with it. I want to make it clear.
کہ आप गिफ्ट देना चाहें. जो सवाल था ये कि क्या हम एक बच्चे को गिफ्ट दे सकते हैं ज्यादा? हाँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. यू हैव टू बी जस्ट, यू हैव टू बी फेयर. जिसको बहुत जरूरत है, जो कर्जे में है, जो पुअर है, जो डिवोर्स कोई डॉटर है या कोई विडो है, या किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट है, या कि जिसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपना अर्न कर सके या अपना ख्याल रखते, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन बेस्ट ये है कि आप बाकी एयर्स जो है उनके साथ शुरा कर लें, कंसल्ट कर लें. अगर वो विलिंगली अग्री करते हैं तो उनका राइट है, तो आप उनके राइट में से किसी और को दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो अपना राइट वेव करके कहते हैं. हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं जहां पर बेटा कहता है हाँ ठीक है ये मेरी बहन को दे दें. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये एंड में हम आ रहे हैं, कैन आई डिवाइड माई प्रॉपर्टी अमंग माई एयर्स व्हेन आई एम सिक. अगर मैं बीमार हूँ और मैं उस वक्त लोगों को मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो मैं लोगों को दे दूं, तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप मरेंगे तो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगी ना. यू मे बी सिक, लेकिन आपको क्या पता कि आप अभी थोड़े दिन बीमार रहेंगे फिर आप ठीक हो जाएंगे. तो आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है, अपने घर को दे देने की क्या जरूरत है, या अपने सबको दे देने की. जब आप मरेंगे तो खुद ब खुद हो ही जाएगा ना. सिर्फ जो आपके पास वाजिबात, जो लाइबिलिटीज हैं वो आप करें. और ये भी हो सकता है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि आप बीमार हैं लेकिन आपका बच्चा आपसे पहले चला जाए. अगर बच्चा पहले चला जाएगा तो फिर क्या होगा, आपने उसके नाम पे घर कर दिया और आप चले गए, और उसके वो फिर क्या होगा, उस घर का क्या होगा. तो इट इज परमिसिबल कि जब आप गुड हेल्थ में हैं, आपकी लाइफ अभी ठीक है, आप गुड हेल्थ में हैं, तो आप दे दें बच्चों को, कोई बात नहीं, लेकिन वो गिफ्ट होगा. वो गिफ्ट के उसमें आएगा, अंडर आएगा, नॉट अंडर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मरने के बाद है, इस बात को हमें क्लियर करना है. गिफ्ट इज ड्यूरिंग योर लाइफ, inheritance is after you die. वसीयत you make during your life, वसीयत is implemented after you die. ठीक है ना. as long as आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप गिफ्ट देंगे और किसी को हार्म करेंगे, किसी को कम, किसी को ज्यादा देके किसी को डिप्राइव करेंगे. अभी मैंने आपको बताया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी को डिप्राइव नहीं करना है. आप अगर फेयरली ट्रीट कर ले हर बच्चे को और आपको लग रहा है तो आप लाइफ टाइम में भी आप गिफ्ट दे सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी को डिप्राइव करने के लिए करेंगे तो वह हराम हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इस तरह भी होता है कभी कभी कि एक मर्द हो या औरत है जिसके कोई बच्चे नहीं है, और वो ये कहता है कि इज अपोज टू हिज और हर ब्रदर्स और स्टेप ब्रदर्स के उनको पैसे मिल जाए, मेरा माल तो मेरे भाई बहनों को मिल जाएगा, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है. तो वो क्या करता है, वो इस एटीट्यूड में वो किसी और को दे देता है, वो किसी और को दे देता है कि मेरे भाई को ना मिले. तो वो बहुत एटीट्यूड गलत है. इट शोज कि वो अल्लाह की डिक्री से, अगर उसके भाई का हिस्सा है, बहन का हिस्सा है, तो उनको मिले. तो ऐसी हराम चीजें नहीं करनी चाहिए. ईच ट्रांसग्रेशन जो हम करते हैं, आप यही सोचे कि आखिरत में अपने लिए हम सिवियर पनिशमेंट ढूंढ रहे हैं. अच्छा, अगर फाइनल इलनेस है, अगर आपको पता है टर्मिनली इल है आप, उसका एक और ही रूल है. अगर आप फाइनल टर्मिनली इल हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो आप सिर्फ, अभी मैंने आपको बताया था, 1/3 ऑफ योर वेल्थ की वसीयत कर सकते हैं. क्योंकि इफ यू आर सिक एंड इट इज, if you are sick and it is not a final illness, you can divide. लेकिन if it is a final illness, तो आप सिर्फ 1/3 कर सकते हैं, and it will not be a gift. वो फिर भी आप तो मरने वाले हैं, वो it will be counted as your वसीयत. तो स्कॉलर्स इनकरेज नहीं करते हैं. आजकल जितने भी स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इनकरेज नहीं करते कि आप जिंदगी में अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे दें. हमने तो दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लग रही है. हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी एसेट्स थे, हमने अपने दोनों बच्चों को दे दिया. तो हमें पता नहीं था कि स्कॉलर्स, ये मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कनाडा में, तो उन्होंने कहा था कि दे सकती हो, तो मैंने दे दिया था. हम लोगों ने दे दिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने. लेकिन अगर आप जब किसी को दे देते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो बच्चे भी टेम्प्ट हो जाते हैं. कभी कभी मैंने लोगों के किस्से सुने हैं, वो कहते हैं कि हमने सब कुछ अपनी औलाद को दे दिया, वो औलाद हमें इज्जत ही नहीं करते, हमें घर से निकाल रहे. आप अजीब अजीब स्टोरी सुनेंगे पाकिस्तान में, कहते हैं हमें घर से निकाल रहे हैं, हमें हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं. बस वो यही चाह रहे थे कि हम मर जाएं, और उनको जैसे ही हम मरे, अभी हम मरे भी नहीं तो हमें तंग भी कर रहे हैं. किसी को नहीं पता कौन पहले मरेगा, हम पहले मरेंगे या कौन पहले मरेगा. तो इसीलिए हम अपनी प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड कर लेंगे, तो उसके बाद अगर हम उसको, तो बट यू डिले इट हैंडिंग इट टू देम, आप उनको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं. समझिए कि मैंने कहा ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया. एक और ये लास्ट है कि अगर मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई ठीक है, मेरा इस घर का ये हिस्सा इसको, ये घर इसको मिलेगा, ये घर उसको मिलेगा, लेकिन मैंने उनको पोजेशन नहीं दी, फिजिकल पोजेशन नहीं दी, तो क्या होगा, वो वसीयत बन जाएगी.
اور وہ وصیت جو ہے 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکے گی. تو جب 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکے گی تو پھر وہ بنے گا ہی نہیں, وہ انویلڈ ہو جائے گا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنی وصیت جلدی بناؤ, 1/3 کے اندر کی بناؤ, اور اپنا مال پورا بچوں کو پورا مت بانٹ دو, اپنے لیے بھی کچھ رکھو, ان کو بھی دے دو. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اٹ از کلیئر. ایک اور فائنل, اب آئی تھنک ابھی وہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے بیکاز ٹائم بہت اوور ہو گیا. وصیت کی ایگزیکیوشن کا انشاءاللہ وی ول, جب ہم نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 12 سٹارٹ کریں گے, اس سے پہلے میں آپ کو یہ وصیت کی ایگزیکیوشن کا انشاءاللہ بتا دوں گی. آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا. چلیں انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. او بیفور آئی فارگیٹ, ہاں کھجور آئے ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہر سال جو فارمر آتا ہے اور پام اسپرنگ سے آ کے اور وہ یہاں پر دے جاتا ہے کھجور, خود ڈیلیور کرتا ہے, اور مجھول آرگینک ڈیٹس ہیں, اور $45 کا 11 پاؤنڈز ہوتے ہیں, بہت اچھے, بہت فریش, ڈائریکٹلی فرام دا مارکیٹ ہوتے ہیں, دکان پہ نہیں جاتے ہیں وہ. تو وہ آ چکے ہیں, اور جو طیبہ جو انچارج ہیں اس نے مجھے فارمز بھیج دیے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس گروپ پہ انشاءاللہ وہ فارم ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ خود آرڈر دے دیں اور خود مینیج کر لیں. اور جہاں سے بھی پک کرنا ہے, اس میں اروائن کا بھی ہوتا ہے, گارڈن گروو کا بھی ہوتا ہے, الگ الگ لوگ ہیں, اور اورنج کا بھی ہوتا ہے. تو میں آپ کو ڈال دیتی ہوں, فارم ڈال دوں تو ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ پھر آپ لوگ خود ہینڈل کر لیں. اوکے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.